Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Shaheen Pasha. Dear students, our today's lecture topic is emotional well-being. Let's look at few definitions now about emotional well-being. Emotional well-being is generally seen as a core component of positive mental health, set by Keyes 2010. And the other definition is the World Health Organization defines mental health as a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. It is often defined as the combination of positive effect in the absence of negative effect, and in general satisfaction with life, which is appreciation of life's rewards, from therapist's guide to positive psychological interventions ने ये कहा. And then emotional well-being is vital for our health and everyday life. It is an important element of our overall well-being, said by Poller and Lee. Happiness and confidence, and is essential for a good quality of life. Morgan have mentioned about this. Childhood and adolescence are crucial developmental periods. In terms of brain development, these stages of life are when many brain structures or neurosystems are rapidly maturing. This has implication for cognitive functioning, जहनी तौर पे, emotional regulation जो हमारे जज्बाती तौर पे, and motivation जो हमें बढ़ावा देती है, and social interactions. In fact, adolescence is increasingly understood to be a sensitive period of development. नौजवानी से जवानी की तरफ जाना एक बहुत बड़ा sensitive period of development होता है ह्यूमन की लाइफ में, with both increased developmental opportunities as well as risks, particularly for mental illness. Fernman and ब्लेकमोर ने ये कहा. Stable and positive relationships with parents and teachers are essential for improving children's well-being and social and emotional skills के एक बुनियादी ठहरा हुआ मजबूत फाउंडेशन. और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स जो है वो कौन इम्प्रूव करता है चिल्ड्रंस की वेल-बीइंग एंड सोशल इमोशनल स्किल्स के अंदर? पेरेंट्स एंड टीचर्स. पेरेंट्स एंड टीचर्स who respect and trust children, provide support when they are facing difficulties, and care about their well-being can help them become resilient and better cope with adversities in life. On the contrary, poverty, family dysfunction, abuse, and history of mental health disorders pose significant risks to child well-being. और ये चीज़ हम जनरल आम अपनी उसके अंदर लाइफ में देखते हैं कि ये चीज़ें वाकई बच्चे की परवरिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है.
And these are the 27 types of emotions, and there could be more which are attached with the human mind and body, like romance, satisfaction, desire, empathetic pain, aesthetics, appreciation, awkwardness, horror, boredom, fear, amusement, admiration, anger, sexually arousing, joy, surprising, sadness, calmness, interest, anxiety, confusion. ये सारी चीज़ें क्या हैं? These are type of emotions जिनको हम everyday life के ऊपर हम जो देखते हैं और उस चीज़ को हम जो है वो महसूस करते हैं. And then let's see what are the components of mental health. Three components of mental health have been described by psychologists and educationists who have researched year and year on mental health and well-being, that there are three types of mental health components: emotional well-being, psychological well-being, and social well-being. Who is an emotionally disturbed person? We got to see that when we are talking about emotions, we got to see that what disturbs emotionally to a person. We use the term emotionally disturbed person, EDP, to describe a person with emotional, mental, or erratic behavior that affects their decision making process, that may include hurting themselves or others. क्या है कि इमोशनली डिस्टर्ब पर्सन वो होता है जिसको कोई बात पसंद नहीं आती, या जो किसी शख्स को पसंद नहीं करता, जो अपनी चॉइसेस नहीं बना सकता, जो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता और कंफ्यूज्ड रहता है. तो समटाइम्स क्या होता है कि वो इरप्ट हो जाता है, वो बिखर जाता है, वो डिस्टर्ब होता है इंटरनली, और वो इसी चीज़ को जो है अपने लिए भी ख़तरे का बायस बनता है और दूसरों के लिए भी ख़तरे का बायस बनता है. और फिर व्हेन वी लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिम्टम्स ऑफ इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर, तो हम उसके अंदर क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो है hyperactivity है, and then some of the characteristics and behaviors seen in children who have an emotional disturbance include hyperactivity, short attention span, impulsiveness, aggression or self-injurious behavior, acting out, fighting, withdrawal, not interesting socially with others, excessive fear or anxiety. According to बोस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, उन्होंने ये कहा कि सम ऑफ द इमोशनल सिम्टम्स जो हैं वो ये हैं कि ईजीली गेटिंग अनॉयड और नर्वस, कि उसके अंदर सेल्फ एस्टीम इतनी नहीं है, लेकिन अगर कोई उससे बात पूछता है तो वो अचानक से उस चीज़ का जो है वो जवाब नहीं दे पाता, और वो क्या हो जाता है, वो उस बंदे से और उसके क्वेश्चन से अनॉयड हो जाता है और वो एंग्री हो जाता है. एंड देन ऑफन अपीयरिंग एंग्री, और वो अपने आप के जो है किसी भी तरह की जो है कंफ्यूजन को और नर्वसनेस को छुपाने के लिए अक्सर आपको जो है वो एंग्री ही नज़र आएगा. और अगर वो कोई चीज़ नहीं कर सकता और उसे पता है कि ये मेरे अंदर फॉल्ट है, तो देन ही इज़ ऑलवेज पुटिंग ब्लेम ऑन अदर्स.
और 4 नंबर पे वो कहता है कि ही कैन नॉट फॉलो रूल्स और क्वेश्चनिंग अथॉरिटी, हमेशा रिफ्यूज़ करता है ऐसे लोगों को के साथ इंटरेक्शन को जिसका उसे पता हो कि ये उसको कुछ सिखाना चाह रहे हैं या उससे जो है टीच करना चाह रहे हैं, उनसे ये अवॉइड करता है। आर्गुइंग एंड थ्रोइंग टेम्पर टेंट्रम्स, के हर बात के ऊपर जो है वो ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर झगड़ना, आर्ग्यू करना, बहसों मुबाहिसा शुरू कर देना और एंड के ऊपर जो है ना वो बिहेवियर टेंट्रम्स दिखाना कि हाँ सारा कसूर तुम्हारा ही था या इस तरह से तुम क्या समझते हो, इस तरह की बातें करना। हैविंग डिफ़िकल्टी इन हैंडलिंग फ्रस्ट्रेशन, और ऐसे लोग जो होते हैं उनके इमोशनली बिहेवियर जो डिसऑर्डर के सिम्टम्स में ये चीज़ उनके बस में है ही नहीं कि दे कैन नॉट हैंडल देयर फ्रस्ट्रेशन, कि उसको वो किस तरह से जो है अपने जो उनके बिहेवियर है उसके इमोशनली जब डिस्टर्ब हैं तो उसको अपनी फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से हैंडल करें, दे डोंट नो। एंड देन इमोशनल हैप्पीनेस, वेलबींग की और मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं तो ये यही चीज़ है कि ओरिजिनली हम इस चीज़ का आंसर यही देते हैं कि इमोशनल हैप्पीनेस है क्या, हम इसका आंसर देते हैं कि वी रियली फीलिंग दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट दैट समवन externally has to love you to make you feel happy or good about yourself. It's your job to figure out how to be in the state of absolute happiness, not relative happiness. कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको अंदर से खुशी होती है और आप अपने आप को जो है वैल्यूड पर्सन समझते हैं, और यही चीज़ आपको सिर्फ ये है कि ये अंदर से मुकम्मल जो है वो खुशी होती है। एंड मेंटल हेल्थ एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज़ एंड नेशंस टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल नेटवर्क्स एंड कम्युनिटीज़ इन विच दे एग्जिस्ट। यंग पीपल who are emotionally healthy have the ability to develop emotionally, intellectually and spiritually, to develop and sustain personal relationships with others, to use solitude constructively and enjoy it, to develop empathy for the feelings of others, to play and learn, to develop a sense of right and wrong and address, to learn from everyday conflicts and setbacks। कि यही चीज़ जो है उसकी हैप्पीनेस शो करती है, उसकी पॉजिटिविटी शो करती है, उसकी वेलबींगनेस जो है वो शो करती है। एज यू आर स्टूडेंट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, you need to know what are mental and emotional health difficulties. This knowledge will help you to understand how these difficulties could be overcome to promote students' emotional well-being। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन हमें इन बच्चों के जज्बात, एहसासात और सोचों का ख्याल रखना है और हमें उनके दिल की आवाज़ बनना है और उन्हें ये बताना है कि हाउ टू ओवरकम द फ्रस्ट्रेशन, हाउ टू हैंडल द एंगर, हाउ टू कॉप विद एवरीडे डिफ़िकल्टीज विच दे फेस। एंड देन द डिफरेंस between emotional and mental health and well-being is that mental health refers to your ability to process information। ये बहुत गौर से सुनने की बात है कि
mental health refers to your ability to process information, और emotional health क्या है? On the other hand, refers to your ability to express feelings which are based upon the information you have processed. A mental health problem can be seen as a disturbance in functioning in one area of relationship, mood, behavior, or development. When a problem is particularly severe or persistent over time, or when a number of these difficulties are experienced at the same time, a child is said to have a mental health disorder. ये किसने कहा है? ये मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ने ये रिसर्च करके ये चीज़ें कही. अनफॉर्चुनेटली द मेजॉरिटी ऑफ अवर children with emotional difficulties are left to deal with their difficulties on their own, alone. वो खुद ही उसके ऊपर बेचारे जो हैं वो कोशिश करते रहते हैं, देखते रहते हैं. उन्हें उस चीज़ की किसी ऐसे राइट वे का नहीं पता होता जिससे वो इस फ्रस्ट्रेशन, एंगर और जो है डिफ़िकल्टी से निकलें. और फिर उनकी सपोर्ट के लिए उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके रहम करम पे जो है वो छोड़ दिया जाता है, और जो है वो उस चीज़ को लेके तो पूरी तरह से अपने आप को संभाला नहीं दे पाता. Emotional health is an important part of overall health. People who are emotionally healthy are in control of their thoughts, feelings, and behaviors. They are able to cope with life's challenges. They can keep problems in perspective and bounce back from setbacks. They feel good about themselves and have good relationship. Whereas जो इमोशनली हेल्थी पीपल हैं उनको तो खुशी खुशी है, उनकी हर चीज़ सीधी सीधी चल रही होती है, और वो हर लाइफ के चैलेंजेस जो गुजर रहे होते हैं उनको और जो आने वाले होते हैं उनको बड़ी आराम से डील करते चले जाते हैं और उसके उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर लेते हैं लाइफ के. बट ऑन द अदर हैंड जब हम पीपल विद हैविंग डिसऑर्डर्स को देखते हैं आर एडवर्स टू इट, वो इससे बिल्कुल मुखालिफ होते हैं. मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स. इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स हैं एक, इन विच द इफेक्टेड पर्सन इंटरनलाइजेज देयर डिफिकल्टीज एंड बिकम एंग्शियस और डिप्रेस्ड or develops physical complaints or an eating disorder. ये उसकी इंटरनलाइजिंग कंडीशन के वो अंदर अंदर से ही टूट फूट का शिकार हो जाता है, जिसके अंदर उसकी जो है वो डिप्रेस और एंशियस फील करता है. और दूसरा जो है वो है एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स. ये वो डिसऑर्डर्स हैं इन विच पीपल डेमोन्स्ट्रेट कंडक्ट डिसऑर्डर्स एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम ADHD भी कहते हैं, एंड हैव बिहेवियर प्रॉब्लम्स. एग्रेसिव बिहेवियर्स इज अ कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, क्योंकि उसके अंदर जज्बात, एहसासात और उम्र जो है वो और बॉडी चेंजेस एंड थिंकिंग चेंजेस आ रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स उन बच्चों में ज़्यादा नज़र आते हैं जो नौजवानी से जवानी की तरफ जा रहे होते हैं. बोथ पुअर पेरेंटल मॉनिटरिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स सच एज हाइपरएक्टिविटी एंड शॉर्ट अटेंशन स्पैन हैव बीन लिंक्ड टू एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स. और इस चीज़ को जो लोग नहीं समझते तो वो क्या करते हैं कि यही चीज़ जो बच्चे की फ्रस्ट्रेशन और अंदर की
जो जज्बात की जब मॉनिटरिंग सही तरह से पेरेंट्स या इंस्टीट्यूशन नहीं समझता, तो ये उसके एक्सटर्नलाइजिंग फैक्टर्स के तौर के ऊपर जो है ये देखने में नज़र आते हैं डिसऑर्डर्स। आगे हम अब इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर में डिप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सैडनेस एंड मिजरी, पुअर कंसंट्रेशन, letharginess, social withdrawal, loss of interest in things, and a negative view of oneself, the world and the future। कि नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी नज़र आती है कि जो कुछ हो हर वक्त एक डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी के तौर पे नज़र आता है। ईटिंग में बी अफेक्टेड विद द यंग पर्सन, आइदर ईटिंग टू लिटल और टू मच। Young people who are depressed may have other problems such as difficult, disobedient or even aggressive behavior। और यही जो है disobedient, लाइफ को ऐसे समझना कि ये बहुत मुश्किल है और ये समझना कि हर कोई उसको बुरा समझ रहा है या हर कोई उस पर नुक्ताचीनी कर रहा है, और यही चीज़ उसको दूसरों के लिए डिसोबीडियंट बना देती है। और वो बिहेवियर जब ये ऑन एंड ऑन चलता रहता है तो ये एग्रेसिव बिहेवियर की सूरत में नज़र आता है। दूसरों के लिए अनॉयड, हर टाइम पे नेगेटिविटी, हर टाइम पे नो नो टू एवरीवन, इवन अपने आप को भी वो तसल्ली नहीं दे सकता। और यही चीज़ जो है मेक्स दैम एंग्शियस और अटेम्प्ट एंड कंप्लीट सुसाइड करने की तरफ ये जो बच्चे जो हैं ये चले जाते हैं। एंड देन डिप्रेशन सीम्स टू बी कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। के कॉजेज ऑफ डिप्रेशन तो होंगे ना कोई, वैसे ही तो नहीं किसी को कोई तकलीफ हो जाती है जब आप कहते हैं कि ये कितना नेगेटिव है। उसका कोई ना कोई तो कॉज होगा जिसने उसको इरप्ट किया इस चीज़ की तरफ। एंड देन वो क्या है, नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। सोशल एडवर्सिटी एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स अमंग पेरेंट्स प्ले अ पार्ट। एंड देन peer relationships affect the risk of self-harming। के आपस का रिलेशनशिप के अंदर स्टूडेंट्स की, फ्रेंड्स की सोशली इंटरेक्शन ठीक तरह से नहीं हो रहा होता, कि एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वो रिस्क ऑफ सेल्फ हार्मिंग भी होता है और दूसरों को भी रिस्क पहुंचाने की हद तक बच्चे आ जाते हैं। द कल्चर ऑफ लेडिज्म दैट रिक्वायर्स यंग मैन टू अपीयर दो प्रिवेंट्स मैनी फ्रॉम सीकिंग हेल्प फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम्स, जो कि उन बेचारों को जो है मिलती नहीं है किसी तरह की भी इमोशनल प्रॉब्लम्स को हेल्प आउट करने के लिए, उसको सॉर्ट करने के लिए। कल्चरली वो इतने ज़्यादा इसके अंदर डिप्रेस हो जाते हैं और उसके दायरों में और उसके चक्रों में पड़े रहते हैं कि वो इसको हल नहीं कर सकते, और यही कॉज इस चीज़ का जो है वो होता है। एंड देन एक और चीज़ जो है इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर के अंदर आ जाती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। ये क्या है कि इट इंक्लूड जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, सेपरेशन एंग्जाइटी, एज वेल एज स्पेसिफिक फोबियाज, कि मेरे से मेरी कोई मोहब्बत ना छूट जाए, मुझे प्यार करने वाला मुझे छोड़ ना दे, मेरी फ्रेंड मेरे से नाराज़ ना हो जाए, मेरे अब्बू मेरे से नाराज़ ना हो जाए, मेरा भाई मेरे से नाराज़ ना हो जाए। ये जनरलाइज एंग्जाइटीज़ हैं। और स्पेसिफिक फोबियाज, कि किसी चीज़ को लेके और उसके बारे में जो है पहले से ही डर जाना कि ओहो
अगर यूँ मैं ऐसे करूँगा तो बस ये गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ अगर नहीं आता, उसके अंदर वीक है, तो वो उसके लिए फोबिया बन जाता है ख़ास चीज़ों के लिए। एंड सच एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, social phobia and panic disorders. The development of anxiety in young people is accompanied in adolescence by feeling of unease and uncertainty about personal identity and body image. ये हमने अभी इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह से बात की कि ये नौजवानी से जवानी की तरफ, एडोलसेंस की तरफ जब बच्चे जाने लगते हैं तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी, एंग्जाइटी पैदा होती है, क्योंकि जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे उनमें तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही होती हैं। सेपरेशन एंग्जाइटी मे बी मैनिफेस्ट एज एक्सेसिव क्लिंगिंग टू पेरेंट्स और स्कूल रिफ्यूजल. Phobias are associated with somatic symptoms such as sweating, diarrhea, and in some cases panic attacks. कि किसी चीज़ का फोबिया अगर आ गया, खौफ आ गया है, तो वो इस सूरत के अंदर के पहले ही अगर कोई टीचर कोई पूछने लगता है या कोई रिलेटिव कोई बात पूछने लगता है तो उसने कहा कि ओहो, अगर इसने मेरे से फ़र्ज़ करें कि मैथ के बारे में पूछ लिया या इस चीज़ के बारे में पूछ लिया तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, और वो फोबिया उसको लेके तो जो है उसको स्वेटिंग हो जाती है, उसका पेट ख़राब, स्टमक एक हो जाता है एंड पैनिक अटैक्स शुरू हो जाते हैं. इट इज़ क्रूशल दैट डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी आर diagnosed early so that effective treatment strategies may be applied, and that the key people in a young person's life, notably parents and teachers, are aware of warning signs and symptoms. Symptoms उसके अंदर जो हैं ये drug abuse are higher in people with mental health disorders and may lead to further physical and mental health problems. Drug related image and drug related damage such as dependence, HIV, hepatitis and overdoses has a social impact and is also related to delinquency, crime, stigmatization and social exclusion के इस चीज़ के अंदर फिर वो उसको जो है सोशल इंक्लूजन की तरफ ये चीज़ें जो हैं ये ले जाती है. जब हम रिस्क फैक्टर्स जो हैं देखते हैं फॉर इमोशनल वेलबींग, तो throughout the research has shown 3 factors about it. Personal factors, in which the child has low intelligence, chronic physical illness, hyperactivity, brain damage, communication difficulties, deafness, high alcohol use, drugs and substance abuse, academic failure, premature underage sexual activities. ये सारी चीज़ें जो हैं ये पर्सनल फैक्टर्स हैं जो कि इमोशनली बच्चे के लिए एक रिस्क का बायस बन सकते हैं. एंड देन फैमिली फैक्टर्स हैं जिसके अंदर वायलेंस आ जाता है कि अगर भाई बहनों को मार रहे हैं और फादर जो है मदर को मार रहा है, चाइल्ड अब्यूज़ हो रही है, अब्यूज़ निगलेक्ट बच्चे हो रहे हैं, डिस्कॉर्डेंट फैमिली रिलेशनशिप है, बीइंग अ यंग पर्सन हु इज़ लुक्ड आफ्टर आउटसाइड द फैमिली, पेरेंटल साइकियाट्रिक इलनेस, inconsistent or unclear discipline, parental criminality, death and loss, rejection by parents. कि अगर कोई बच्चा जिस तरह से जहनी तौर पे अगर एक बच्चा दूसरे बच्चों से थोड़ा सा कम है
तो पेरेंट्स की रिजेक्शन और उसके तानाजनी और उसको जो है एब्यूज़, मेंटल एंड फिज़िकल उसको देना, तो ये सारी चीज़ें भी उसकी जो है वेलबींग के, इमोशनली वेलबींग के लिए रिस्क का बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड फिर ये हमारे सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके अंदर जो है उसकी इमोशनल वेलबींग बहुत असर करती है। वो क्या है? पॉवर्टी है, इकोनॉमिक क्राइसिस, डेप्रिविएशन, डिस्क्रिमिनेशन है, होमलेसनेस है, रिजेक्शन बाय पीयर्स है, बीइंग अ मेंबर ऑफ अ डेविएंट पेयर ग्रुप के बाज़ौकात बच्चे इस चीज़ को बहुत महसूस करते हैं सोशल फैक्टर्स के अंदर के, जब उसके दूसरे पीयर ग्रुप्स या क्लास फेलोज ये कह देते हैं, और यार पिछले पूरे तुमने हफ्ते से यही 2 शर्टें पहन के आते हो तुम। या वो कहेंगे कि अगर स्कूल में हैं तो कहते हैं कि तुमने लंच बॉक्स ही नहीं बदला, तुम्हारे स्कूल का बैग पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं, दीज आर सोशल फैक्टर्स जो कि बच्चे के वेलबींग के लिए असरअंदाज होती हैं। एंड देन हम थोड़ा सा जब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि स्कूल रिलेटेड एंजाइटी एंड स्ट्रेस, फीलिंग सम और a lot of pressure from school work. This pressure on children comes from peers, parents and teachers, as well as from their personal motivation to excel in their academic achievement. फिर लाइफ सेटिस्फैक्शन के तरफ जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ स्कूल रिलेटेड एंजाइटी ऑल्सो रिपोर्टेड लोअर लाइफ सेटिस्फैक्शन लेवल्स। और फिर सब्जेक्टिव हेल्थ कंप्लेंट्स, फीलिंग लो, डिप्रेस्ड, social economic status and gender are differently associated with feeling low. और फिर bullying, physically hitting, punching or kicking, verbal bullying, name calling or mocking. Adolescents who are victims or bullies are more likely to have depressive and anxiety symptoms, low self-esteem, feel lonely and lost interest in activities. ये सारी चीज़ें जो हैं ये बुलिंग के अंदर जो आती हैं, और अगर किसी के अंदर वो ताकतवर नहीं है और वो बहुत लायक नहीं है तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू बी अ गुड इमोशनल वेलबींग। और जब हम प्रोटेक्टिव मेजर्स की बात करते हैं फॉर इमोशनल वेलबींग बनने के लिए, तो इट इज सेड दैट करेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन विच ह्यूमन शोज। सबसे पहले तो खुशी उसके चेहरे पे ही नज़र आती है जो कि करेजियस होता है। करेजियस कौन होता है? जो कि अंदर से स्ट्रॉन्ग होता है, जो खुश होता है, वो हर चीज़ में बढ़ बढ़ के हिस्सा लेता है, और उसकी करेज शो होती है जब वो रिस्क टेकिंग करता है। और कोई भी चीज़ हो तो स्टूडेंट्स हैंड्स आर अप टू कंट्रीब्यूट। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ के किस तरह से फिजिकल हेल्थ को जो है अपने आप को किस तरह से वेल बीइंग इमोशनली बनाने के लिए एक्सरसाइज, फिज़िकल हेल्थ का अच्छा होना बेइंतहा ज़रूरी है। और उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं कि एक्सरसाइज रेगुलरली, eat healthy meals and get enough sleep and don't abuse drugs और अल्कोहल, चाय, कैफीन, इस तरह की चीज़ें, स्मोकिंग, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा एक्सेसिव। एंड पर्सनल फैक्टर्स
a sense of mastery, participation in activities, sports and outside interests, being a member of a non-deviant peer group, personal attributes such as good health, even temperament, positive self-esteem and intelligence और good social skills, religious affiliation. फिर family factors के अंदर supportive relationships with adults, small family size, material resources such as adequate family income, clear and consistent discipline घर में होना ज़रूरी है, support for education कि एक दूसरे की फैमिली में सपोर्ट होनी चाहिए टूवर्ड्स एजुकेशन. जब हम सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं कि किस तरह से हम इमोशनली वेलबींग जो है वो इख्तियार कर सकते हैं, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि सोशल फैक्टर्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. एक्सेस टू गुड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, वाइडर स्पोर्ट नेटवर्क, रेंज ऑफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल, positive policies in school for behavior and attitudes, effective anti-bullying policies, good liaison between school and the local communities. ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. और जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है इसका. Being emotionally healthy does not mean you are happy all the time. It means you are aware of your emotions. You can deal with them, whether they are positive or negative. Emotionally healthy people still feel stress, anger and sadness, but they know how to manage their negative feelings. They can tell when a problem is more than they can handle on their own. They also know when to seek help from their doctor. Research shows that emotional health is a skill. There are steps you can take to improve emotional health and be happier. There are many ways to improve or maintain good emotional health. Be aware of your emotions and reactions. Notice what is your life makes you sad, frustrated or angry. Try to address or change those things. ठीक है, लिस्ट बनाएं. Express your feelings in appropriate way. Let people close to you know when something is bothering you. ज़रूर शेयर करें. Keeping feelings of sadness or anger inside adds to stress. It can cause problems in your relationships and at work or school. Think before you act. Always. Emotions can be powerful. Give yourself time to think and be calm before you say or do something you might regret. कि बाद में ना पछताना पड़े, पहले ही सोच के बोलें. Manage stress. Try to change situations causing you stress. Learn relaxation methods to cope with stress. These could include deep breathing, meditation and exercise. फिर आगे है strive for balance. Find a healthy balance between work and play and between activity and rest. Make time for things you enjoy. Focus on positive things in your life. फिर take care of your physical health. Your physical health can affect your emotional health. Exercise regularly, eat healthy meals, get enough sleep, don't abuse drugs, and connect with others. We are social creatures. We need positive connections with other people, and then
find a purpose and meaning of life. Figure out what is important to you in life and focus on that. And then stay positive. Focus on the good things in your life. Forgive yourselves for making mistakes and forgive others. Spend time with healthy, positive people. And remember, people who have good emotional health can still have emotional problems or mental illness. Mental illness often has a physical cause. This could be a chemical imbalance in the brain. Stress and problems with families, work or school can trigger mental illness or make it worse. क्या चीज़ चाहिए? Counseling, sport groups and medicines can help people who have emotional problems or mental illness. Must talk to your doctor and close ones. They can help you find the right type of treatment. ये चीज़ जो है कि आपको ये सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी. और ये रेफरेंसेस है जहाँ से ये सारी जो है डिस्कशन मैंने आपके साथ की. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द lecture about emotional well-being.